Okay. So question number 8. Question number 8. एक बार चेक करना क्या लिखा है. In 100-meter race, A can beat B by 20 meter. Okay. So 100 मीटर की रेस है और ये बोल रहा है A beat B by 20 मीटर. It means A अगर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो इन द सेम टाइम B कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा? 80 मीटर्स का, बिकॉज 20 मीटर से वो हार रहा है. सो A by B इज इक्वल्स टू 100/80. इज इट क्लियर? और फर्दर वी कैन राइट A by B is equals to 5/4. We can write like this also. Okay. Further, the question says that and B can beat C by 10 meter. So B beat C by 10 meter. It means जब B 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, C कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 90 मीटर्स का. So B upon C is equals to 10/9. Correct? Okay. Now the question is, find by how much in same race, find by how much distance A beats C. So you have to find A by C. A by C is equals to question mark. Correct? So how we can find A by C? A by C, we can write A by C is equals to A by B into B by C. We can write it like this. Further, A by C is equals to, the value of A by B is 4/5 from this expression. Okay. Sir, The like value, in the question, it has been mentioned A can beat B by 20 meters, so we have taken 100/80. But then they mentioned B can beat C by 10 meters, so why we have again taken 100 for B? yes, because if B is beating C, it means B is reaching to the finishing point. It means B is completing the total distance of 100 meter. Whereas the C was 10 meter behind him. That's why he had covered only 90 meter distance. Okay. Yes, sir. So A by B is 4/5, whereas B by C is 10/9. Correct? So it will be, I think, A by C. The question says that find by how much A beats C. Okay. So yes, I think it is 50/36. Is it correct? Kindly check. Or we can write it as 25/18. Okay. Just wait, but A by C. So what does this means? It means when A cover a distance of 25 meter, at that time C covers a distance of 18 meter only. Is this step clear to all of you? Now the race is of total 100 meter and A is beating C. It means A will finish the 100 meter first. So when A by C is equals to 25/18, that is equals to 100/x. Means when A is completing the 100 meter distance, nahi aayi. So how much distance C had covered at the same time? So we will further cross multiply and simplify this. We will get x. That will be 100 into 18 divided by 25, or forza 18 forza. It will be 72. Okay. So C had covered 72 meter distance when A had reached the 100 meter distance. So A beats C by 28 meter. This will be the final answer. Is it clear, Naina, Chevy? समझ में आ Sir, गया? if suppose C already finished the race first, so we will be considering that as 100 and then our A will be X. Exactly. If C is beating A, then we will consider it as x/100. Correct? हाँ नैना कुछ बोल रहे थे? डाउट क्लियर? No, sir, clear. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9.
So question number 9 states that in a 200-meter race, now the race is of 200-meter, okay? A can give a start of 18 meter to B. So let us consider that this is a starting point SP and this is a finishing point FP, and according to question, A gives a start of 18 meter to B. So B is starting from this point and this point is 18 meter from the starting point. So how much distance will be covered to reach the finishing point? It will be 200 because the total distance from starting to finishing point was 200. So 200 minus 18, it will be 182 meter. Correct? So this will be the distance for B to cover. Okay. Further, uh, okay. A can give a start of 18 meter to B and a start of 31 meter to C. Okay. So C is starting from another this point and this point is 13 meter. Let me delete this part. Okay. So this point is B from where it is starting. C is getting a start of 31 meter. So C will cover the remaining distance. I think it will be 169 meter distance. Okay. Now, the question says that in a race of 350 meter, in a race of 350 meter, how much start can be give to C? Okay. Okay. So this question, you have to understand few things in this question. हाँ बोलो नैना क्या बोल रहा? सर जो 31 मीटर का स्टार्ट है वो हाँ बी सी को दे रहा है या फिर ए सी को दे रहा है? ए सी को दे रहा है क्योंकि उसमें लिखा है ना ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर टू बी एंड ए स्टार्ट ऑफ 31 मीटर टू सी. सो इट इज ऑल अबाउट ए विच इज गिविंग ए स्टार्ट टू बोथ ऑफ देम, बी एंड सी. ठीक है. ओके सर. ओके. सो इस स्टेटमेंट में ना थोड़ा सा ट्रिकी क्या है समझना. इसमें ये बोल रहा है ए कैन गिव ए स्टार्ट टू बी एंड टू सी. ठीक है. मतलब ए दोनों को इतने का स्टार्ट दे सकता है और ये नहीं बोल रहा है कि कौन पहले पहुंच रहा है कौन बाद में पहुंच रहा है. ठीक है. इसका मतलब ये है कि तीनों एक साथ पहुंच रहे हैं. इट कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर, मतलब वो 18 मीटर का स्टार्ट उसको दे सकता है. वो तभी दे सकता है ना जब वो 18 मीटर उससे पहले पहुंचे. इसका यही मतलब हुआ ना. तब वो उतना मार्जिन उसको प्रोवाइड कर सकता है. और वो 31 मीटर का मार्जिन सी को दे सकता है, मतलब वो 31 मीटर सी से पहले पहुंचे. यही इसका मतलब हुआ. क्लियर ये चीज. तो इसमें रेशियो आपको गिवन नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आप रेशियो कैसे निकाल सकते हो. देखो ए बाय बी का जो रेशियो, ए बाय बी का रेशियो क्या है. टोटल 200 मीटर की रेस है. तो अगर ए 200 मीटर कवर कर रहा है तो एट द सेम टाइम बी कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा. 182 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा. क्लियर ये चीज. वहीं ए बाय सी का रेशियो भी आपको इनडायरेक्टली गिवन है. ए अगर 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सी कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा. 169 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा. क्लियर ये चीज. अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है. अगर ये रेस 350 मीटर की होती है, if the race is of 350 मीटर, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी. तो बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है ये पूछ रहा है. बी या बी कितने मार्जिन से सी को बीट कर सकता है. इट इज द सेम थिंग. बाय हाउ मच मार्जिन बी कैन बीट सी. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. करेक्ट. दैट विल बी द मार्जिन और दैट विल बी द स्टार्ट बी कैन गिव टू सी. ये आपको निकालना है. So first of all, A by B and A by C is given to us. We will find B by C to calculate this part, correct? Okay. So B by C will be equals to B by A into A by C. ऐसा ही होगा. B by A कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो. तो B by A की वैल्यू कितनी आएगी. 182 डिवाइडेड बाय 200 इंटू ए बाई सी. ये वाली वैल्यू एज इट इज
200 डिवाइडेड बाय 169, करेक्ट। ये 200 और ये 200 कैंसल आउट हो गया। 182 अपॉन 169 ये किसी से कट सकते हैं क्या? 13 से कट जाएंगे। 30 ये तो एक्चुअली 13 का स्क्वायर होता है ना, तो 13 से ही कट सकता है। 13 13 सा 169 होता है। 13 1 जा 13, 13 4 जा, सो इट विल बी 14 बाय 13, correct? So B by C is equals to 14 by 13. It means when B covers a distance of 14 meter, C covers the distance of 13 meter in the same time. It means this. Clear? Further, this ratio B by C is equals to 14 by 13, and we will equate this ratio for this 350 meter race. It Correct? will be 350 upon X. Correct. It will be 350 upon X. It means B is reaching first. He will complete the 350 meter distance. At that point, where is C? What will be its position? So it will be determined by this X. Okay. So X will be 350 into 13 divided by 14. So 14, check करो, 2 7 से कट जाएगा ना, 7 2 जा 7 5 जा So 325. 25. Okay, X is equals to, it is 325. Okay, X is 325, correct? So when B is reaching the 350 meter distance, the C is only at a distance of 325 meter. So B can give a start of 25 meter to C. That will be your answer. करेक्ट? क्रॉस चेक करो आंसर्स को, करेक्ट है? ये भी हमने किया क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10। ये हटा रहा हूं फिर मैं, क्वेश्चन नंबर 10। Okay, so question number 10 says that in a flat race, A beat B by 15 meter and C by 29 meter. When B and C run over the course together, B wins by 15 meter. Find the length of the race course. So here the length of race course is unknown, that we have to determine, correct? So let us consider that the length of race course be x meter. तो हमने length of race course कितनी? Yes. फ्लैट रेस मतलब फ्लैट रेस मतलब स्ट्रेट रेस है और कुछ नहीं है, मतलब सर्कुलर रेस नहीं है इस तरह का, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल रेस है। ओके ओके, so we have to determine length of race course and we have considered that as x meter, correct? Now according to question, A beats B by 15 meter. So A beats B by 15 meter. So what does this means? It means when A is reaching to the finishing point, it means when he is covering a distance of x meter, at that point B is 15 meter behind him, so he could cover only x minus 15, this much distance. Okay, so A by B is x upon x minus 15, correct? Further, A beats C by 29 meter. So A beats C by 29 meter. Yes, so A by B is equals to x upon x minus 29. Is it correct? Now, the last statement says that C beats, B beats C, na, correct? B beats C by 15 meter. It means B by C is equals to x upon x minus 15. करेक्ट? चेक करो एक बार, कहीं कुछ डाउट तो पूछो इस। हाँ, ओके,
Further, we have to find the value of x. So for which we will create an equation based on this data. So we can write a by b is equals to a by c into c by b. We can write it like this. A by b is equal to a by c into c by b. So the value of a by b is x upon x minus 15. That is equals to a by c, which is x upon x minus 29, into c by b, which will be x minus 15 upon So why x. did we take in this way only? Look, we can take any ratio from these. So I have considered the first one a by b. So to obtain a by b from these two, I will check. The first one is a by c. Okay, so here the numerator is a and denominator is c. In the second one, it is b by c. Okay, so we have to Yes. eliminate c. So it is obvious, if we divide these two, we will get this. Okay, so further, this x and this x gets cancelled. In the left hand side, it is x minus x upon x minus 15. In the right hand side, it will be like this. Okay, further cross multiply the terms. Here it will be x square minus 29x. In the right hand side, it will be x square plus 225 minus 30x. Correct? Okay, so the length of race course is 225. Check करो answers. ओके, क्लियर? सो हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्या हुआ, रिया का बन रहा है कि नहीं? आज शांत है इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. चलो अच्छा है, शांत रहना चाहिए. अच्छा है, शांत रहना चाहिए, बन रहा है तो शांत रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. A can run 1 kilometer in 4 minutes 54 seconds. B can run 5 B क्या लिखा है, and B in 5 minutes. Okay. How many meters can can A give to B in 1 kilometer race so that the race may end in dead heat? डेड हीट मतलब सब एक साथ पहुंचे, तो यही बोल रहा है कि उसको कितने किलोमीटर का स्टार्ट देना चाहिए कि दोनों एक साथ पहुंच जाए. ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि ए जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है. कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1 किलोमीटर का. कितने टाइम में कवर कर रहा है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस? कितने टाइम का में कवर कर रहा है ये डिस्टेंस? 4 minutes 54 seconds. 4 मिनट 54 सेकेंड्स. ओके, तो 4 मिनट 54 सेकेंड्स. इसको हम एक काम करते हैं, पूरा सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और डिस्टेंस को भी मीटर में लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा 1000 मीटर. और ये टाइम कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, टाइम कितना होगा? 294 सेकेंड्स. ओके, 294 सेकेंड्स. ओके, सो ए की स्पीड कितनी है? स्पीड, क्योंकि हम वो रेशियो स्पीड का ही लेते हैं ना जो ए बाई बी लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो इट विल बी 1000 अपॉन 294. करेक्ट? सो this is the speed of A. Is it clear? Now let's calculate for B. So B covers the same distance. So B is also covering a distance of 1000 meter. How much time it is taking? 5 minutes means in second it is 300 seconds. Correct, 300 second. So speed of B will be 1000 upon 300. Correct? कट सकता है लेकिन उसको मत काटो, जैसे वैसे ही रहने दो. Okay? Because we will find A by B. We have to find this ratio. Okay? So A by B will be 1000 upon 294 divided by 1000 upon 300. Correct? So it will be 300 by
294, करेक्ट। फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? 6 से सीधा जा सकते हैं क्या? हाँ, 6 से जा सकता है। 6 5 जा, सो इट विल बी 50, 6 4 जा 24, 6 9 जा 49, so it is 50 by 49. What does this means? It means when A covers a distance of 50 meter, C can cover the distance of 49 in the same time. Okay, now the question is, uh, how many start can A give to B in a 1 kilometer race? So we have to find the distance covered by B when A covers a distance of 1 kilometer. So we will equate this term with 1000 upon x, correct? क्यों? क्योंकि A जो है 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। 1 किलोमीटर मतलब कितना? 1000। हाँ, नहीं, क्यों यहां पर? क्योंकि उसमें बोल रहे हैं ना कितना उसको स्टार्ट देना चाहिए। तो बी जो है वो पूरा डिस्टेंस थोड़ी ना कवर करेगा, वो थोड़ा आगे से कवर करेगा। देखो सिंपल मीनिंग क्या है, अगर मान लो हम दोनों की रेस होती है, तो मुझसे 10 मीटर से हार जाती हो, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर के डिस्टेंस से मैं तुमको हरा देता हूं, ठीक है? तो अगर तुमको हम दोनों को डेड हीट करनी है, मतलब सेम टाइम पे कंप्लीट करनी है रेस, तो तुमको कितना स्टार्ट देना पड़ेगा मुझे? 10 मीटर का। क्लियर ये चीज? तो हम यही डिस्टेंस निकालेंगे कि कितने मीटर से वो उसको बीट कर पा रहा है। दैट मच स्टार्ट ए कैन गिव टू बी। ओके, सो एक्स विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 49, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। X is equals to, I think it is 980 meter. Okay, so it means when A covers a distance of 1000 meter, B covers only 980 meter. So how much start A can give So to B? 20 meters. 20 meter. Correct? Okay. सर हाँ बोलो। सर बट जब हमने A बाय B किया है तो उसमें तो हमने दोनों की स्पीड ली है ना, हम्म, तो दोनों की स्पीड लिए तो 50/49 है, तो वो डिफरेंस है डिस्टेंस का। मतलब एक्चुअल में स्पीड के रेशियो से यही पता चलता है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसी समय में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब मान लो किसी की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब पहला जो पर्सन है वो 1 आवर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा जो पर्सन है 1 आवर में 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो 10/9 हम उसको लिख सकते हैं। बस यहां पर भी वही चीज बता रहा है, अगर पर्सन ए 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसी टाइम में पर्सन बी 49 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। समझ में आई ये चीज? तो अगर पर्सन ए 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो पर्सन बी उसी टाइम में कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा, तो जिसको कि हमने एक्स लिया। समझ में आया? हाँ ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, नहीं, रुक जाओ, अभी शांत रहना। Question number 12. In a race of 600 meter, A can beat B by 60 meter. So कितने मीटर की रेस है ये? 600 मीटर की। A can beat B. A beat B by 60 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ तान्या, रिया? इसका मतलब दैट इज इक्वल्स टू 540। हाँ, ठीक है। A by B is equals to this. Further, the question says that, and in a 500 meter race, B can beat C by 50 meter. So मैं सीधा ये लिख देता हूँ, B by C is equals to 500 by 450. Correct? 450. ओके, इसको सिंप्लीफाई करके 60/54 वैसे हम लिख सकते हैं। फर्दर 6 से कटेगा तो 10/9 ये भी आ जाएगा ना।
इसको भी हम कट कर सकते हैं, 0 0, 5 10 सा और ये 5 9 सा, ये भी 10/9 आ रहा है क्या? दोनों 10/9 आ रहे हैं। ओके, 10/9 10/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं ना हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है by how much meter A beat C in 400 meter? A beat C in 400 meter race. तो आपको सबसे पहले A by C निकालना पड़ेगा, तो A by C कैसे निकालेंगे? It will be A by B into B by C, करेक्ट? ऐसे निकले। हाँ, यहां पर एक मिनट अनुश्री ध्यान देना, यहां पर भले वो 600 मीटर का डिस्टेंस वो लोग कवर कर रहे थे, लेकिन हमने क्या निकाला? रेशियो निकाल लिया ना उसका। हमने ये देखा कि जब ये 600 कवर कर रहा है तो ये कितना करेगा? 540 कवर करेगा। या जब ये 60 करेगा तो ये कितना करेगा? 54। या जब ये 10 मीटर करेगा तो ये कितना करेगा? 9 मीटर। तो जब ये 10 कर रहा है तो ये 9 कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ ना ये चीज। उसी तरीके से बी और सी भले 500 मीटर की रेस है, लेकिन रेशियो हमको क्या मिल गया कि अगर ये 10 कर रहा है तो ये कितना कवर करेगा? 9 करेगा, ये मिल गया। अब ए बाय सी का निकालना है, तो ए बाय सी का रेशियो देखो, जब ए 10 मीटर कर रहा था तो बी कितना कर रहा था? 9, तो 10/9 ये रेशियो दिया हुआ था। बी बाय सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 10/9, तो ये दोनों हमने पुट कर दिया, तो बी बी कटेगा तो ए बाय सी का रेशियो मिल जाएगा, मतलब ए बाय सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 100/81। ये 1/1 कैसे आएगा? 100/81 आएगा, यही आएगा ना, क्योंकि 10 की टेबल में 10 10 सा 100 होता है, इसलिए आएगा। Yes, sir, got the answer. मैं कब बोला? अरे मैं ये बी और ये बी कैंसिल होगा बोल रहा हूं मैं, ये बी और ये बी कैंसिल होगा तो ए बाय सी मिलेगा, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर। ए बाय सी कितना आ गया? 100/81। तो इसका मतलब जब ए 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, सी कितने का करेगा? 81 का। तो जब ए 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो एक्स सी कितना करेगा? एक्स मीटर का करेगा। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं इसको सॉल्व करके, तो क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ, सो इट विल बी 324। ओके, सो ए सी को कितने मार्जिन से बीट करेगा? So 400 minus 324, so it will be 76. Correct. A beats C by 400 minus 324, that is 76 meters. So A beats C by 76 meters. That's it. Correct. Now let's move to the next point. Next 3 questions. I think these 3 questions are based on games. Games. So let us understand So some. it's the same way only we will do, no? Yes, the method will be same, just few differences, few terms that you have to keep in your mind to understand that. Okay, so let me explain first the condition or statement, how we have to use that. Just a second, यहीं पर से देख लो। देखो, यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 43 चेक करना। पेज नंबर 43 दिख रहा है? इसमें एक स्टेटमेंट बोल्ड लेटर्स में लिखी है, उसमें क्या लिखा है? उस पूरी स्टेटमेंट को, पैराग्राफ को समझो। सपोज ए एंड बी आर 2 पार्टिसिपेंट्स इन अ गेम। A scores 100 points while B scores only 70 points. Then we can say that A beat B by 30 points, or A can give B 30 points. So अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर एक 100 पॉइंट्स का गेम है, अगर 100 पॉइंट्स का गेम है, A beat B by 30 points, समझ गए तो बताना। इफ A beats B by 30 points, तो A के
ए कितना स्कोर किया और बी कितना स्कोर किया 70। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए कैन गिव बी 30 पॉइंट्स। क्लियर ये चीज? ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर x पॉइंट्स का गेम है, ठीक है, और अगर स्टेटमेंट लिखा है ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, 15 पॉइंट्स टू बी, इट मींस a बाय बी कितना आएगा? x अपॉन x माइनस 15। क्लियर? क्लियर ये चीज? ओके, सो ये कंसेप्ट यूज होगा यहां पर आगे। ओके शैवी नैना? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? क्वेश्चन नंबर 13, चलो चेक करो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट। In a game of 90 points, A can give 15 points to B. So 90 points का गेम था और क्या बोल रहा है? A can give 15 points to B. तो A by B कितना आएगा? 90 अपॉन 90 माइनस 15, दैट इज 90 अपॉन 75। मतलब A अगर 90 स्कोर कर रहा है तो B कितना स्कोर कर रहा है? 75। क्लियर? फर्दर B and 30 points to C, and 30 points to C मतलब A by C is equals to 90 upon 90 minus 30. It means it is 90 upon 60. Clear? यहां तक क्लियर? ओके, आगे लिखा है how many points can B give to C in 100 point? B by C आपको निकालना है 100 पॉइंट्स के गेम में, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे? B बाय C निकालोगे यहां पर सिमिलर वे में। सो B बाय C इज इक्वल्स टू B बाय A इंटू A बाय C, दैट इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 90 इंटू 90 अपॉन 60। करेक्ट? तो यहां पर ये 90 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 75 बाय 60। 15 से कटेगा, 15 4 जा 15 5 जा। सो B by C is equals to 5 by 4. Clear? So we can write, that is equals to 100 upon x. यहां तक क्लियर? So you will get x is equals to कितना आ रहा है? 20 points. इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, So x 80 आ रहा है। सो फाइनली ये लिखेंगे B can give 20 points to C. क्लियर? शेवी नैना सबको क्लियर है ये? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये हटा दूं मैं पूरा? अरे मुझे क्या पता। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ रिया क्वेश्चन पढ़ना। हाँ पढ़ो। Okay, A can give 20 points to B in 60. It means A by B is equals to 60 by 40. Correct? Further, it means A by C is equals to 90 upon 90 minus 18. I think which will be 90 upon कितना आएगा ये? नहीं ना, 90 upon 90 minus 18. 72. Okay? C by B in 120 is equals to question mark. ठीक है? So same process use होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? C by B. So C by B is equals to C by A into A by B. Correct? So C by B is equals to C by A will be 72 upon 90. A by B is 60 upon 40. 0 0 cancel. 9 10 za, 9 8 za, 4 1 za, 4 2 za, 2 1 za, 2 5 za, 6 by 5. So C by B is equals to 6 by 5. कितने पॉइंट्स का गेम है? 120. So is equals to 120 upon x.
So x will be 120 into 5 upon 6. 6 ones बट are सर 6. हाँ बोलो. बट सर यहाँ तो दोनों मैचेस अलग-अलग पॉइंट्स पे हो रहे हैं, एक 60 और एक 90। हाँ ठीक है, तो इसीलिए तो हमने रेशियो लेते समय अलग अलग लिया ना. a बाय बी में 60/40 किया, मतलब 60/60 और जब 90 वाला था तब 90/90 -18. तो हम जहाँ यहाँ पे c बाय बी इक्वल्स टू सी बाय ए इंटू ए बाय बी करेंगे तो भी सेम वैल्यूज ही लेंगे। हाँ, क्योंकि ये हमने तो उनको कट कर दिया ना, वो रेशियोज हमने सिर्फ निकाला ना. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3/2. मतलब अगर भले 3 मैच, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 पॉइंट्स का गेम है तो ए 3 स्कोर करता है, बी 2 स्कोर करता है. इसका मतलब ये हुआ ना. फिर भले वो 60 का मैच हो, 40 का मैच हो, 100 का मैच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यस सर। ओके. हाँ, सो कितना स्कोर कर रहा है 20 मार्क्स से उसको दे सकते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. क्वेश्चन नंबर 15. तो 15 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन अ गेम A can give 15 points to B, A can give 30 points to C, B can give 20 points to C. How many points make the game? ओके, सो वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था अभी. x पॉइंट्स का गेम लेंगे. वी विल कंसीडर द गेम ऑफ x पॉइंट्स. ओके, सो a कैन गिव 15 पॉइंट टू b. इट मींस a बाय b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? करेक्ट. b बाय फिर उसके क्या लिखा है? a कैन गिव 30 पॉइंट्स टू c. सो a बाय c इज इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 30. और उसके बाद फिर लिखा है B can give 20 points to C, so B by C is equals to x upon x minus 20. क्लियर? सो ये वाले स्टेप्स क्लियर है. फर्दर हमको क्या करना है? थर्ड वाला ये कि अगर B C को 20 पॉइंट से हरा रहा है तो टोटल तो वो कवर करेगा ना, तभी हरा रहा है ना. ओके, so we will write it like this: a by b is equals to a by c into c by b. Correct? So a by b is x upon x minus 15. A by c is x upon x minus 30. C by b is x minus 20 upon x. Correct? So ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी. फिर उस x निकालना है ना. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने थे उस गेम में, वो निकालना है हमको. x स्क्वायर. x की वैल्यू कितनी आ रही है? 60 आ रही है क्या? चेक करो तो. हाँ 60 आ रही. ठीक है. ओके, Sir, it will be negative or positive? इट विल बी पॉजिटिव ओनली. Yeah, yes, sir. नहीं, एक मिनट वेट करना. अभी मैं तुम लोगों को करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन मैं तो अभी आगे एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा. एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें 2 क्वेश्चंस बस है. एक्सरसाइज 2.5, बिकॉज दैट इज मस्ट. 2.5 बोल रहा हूं, मतलब चैप्टर 2 का हुआ ना, 5th एक्सरसाइज. क्योंकि वो कल के क्लास पढ़ाने के पहले प्री रिक्विजिट है, उसके बिना. So chapter 2 is there now in our syllabus? यस Like the चैप्टर 2 entire इज. chapter? हाँ, yes, chapter 2 is there. I think nothing is deleted from that chapter. So you have already covered this chapter, or we will be No, solving this no, later on? actually, I have not covered that chapter. I will teach them
completely. Okay, but Yes. actually exercise 2.5 is required for the tomorrow's class, that is LPP. Okay, so just one or two questions तुमको करना है करो, नहीं करना जा सकते हो, मैं लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगा बाकी बच्चों के Which लिए. page number? It is in page number 85. Okay, so exercise 2.5, exercise 2.5, this exercise is based on solution of linear inequality, solution of linear inequality. Okay, so let us solve first question. So the first question is x plus y less than or equals to 6, and second is x plus y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. यहां पर ध्यान से समझना, हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. 2-3 स्टेप है, ध्यान से सुनोगे. इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सॉल्व करना, और अगर करेक्टली बना लिए तो आज एंड कर दूंगा मैं सेशन. ठीक है, ओके. सो हाउ वी कैन सॉल्व these two system of inequality graphically. So the first step is we convert these inequality into equation. So for that we will write it like this: x plus y is equal to 6. Similarly it will be x plus y is equals to 4. Correct? Okay, further we will draw the graph of both the equations. So for the first equations, वही बता रहा हूं ना, स्टेप्स क्या होंगे, पहले इक्वल्स टू बना देंगे हम इनइक्वालिटी को हटा के. स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हम उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ग्राफ प्लॉट कैसे करते थे हम? हाँ, x 0 रखते थे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6. y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो x क्या आएगा 6. तो 2 पॉइंट मिल गए. तो एक पॉइंट क्या आ गया, ये वाला. एक पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट गया 6,0. ये वाला पॉइंट क्या 0,6. फिर उसके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह से लाइन बना देते थे. क्लियर हुआ ये चीज? ओके. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जिसका हमने ग्राफ बनाया उसकी इनइक्वालिटी चेक करेंगे. ये है इनइक्वालिटी. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर ध्यान से सुनना. इस इनइक्वालिटी में जो सॉल्यूशन होगा इसका, वो या तो इस लाइन के नीचे की तरफ होगा या इस लाइन के ऊपर की तरफ होगा. दोनों में से कोई एक रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन काउंट होगा. तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक रीजन में कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे. तो कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करना है दोनों तरफ में से? नीचे वाला ले लेते हैं, मान ले जीरो. नीचे वाला ले लेते, ये ले लेते ओरिजिन. सबसे आसान होता है ओरिजिन लेना. बस ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो उस लाइन में न आए. तो यहाँ पर ओरिजिन नहीं आ रहा है. अब हम ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है क्या है 0 0, उसको इनइक्वालिटी में रखते. तो यहाँ पर अगर मैं 0 0 रखूं तो ये क्या आएगा 0 प्लस 0, ऐसे ही आएगा 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल्स टू 6. तो क्या आएगा 0 लेस देन और इक्वल्स टू 6. क्या ये ट्रू है, क्या ये सही है जो Yes, इनइक्वालिटी sir. आई? 0 इज लेसर देन 6. यस इट इज करेक्ट. हाँ तो ठीक है चलेगा, लेकिन इनइक्वालिटी तो ट्रू हो रही है ना. इट मींस ये वाला जो पार्ट है ये उसका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा, और उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे. क्या ये समझ में आया? सेम काम हम सेकेंड वाले के साथ करेंगे. तो सेकेंड वाली लाइन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो उसके लिए x और y पॉइंट्स निकालेंगे. x0 y4 x4 y0. तो ये दो पॉइंट्स मिल गया हमको. एक पॉइंट आ गया 0,4, ये वाला पॉइंट आ गया 4,0. क्लियर? यहाँ पर इसको इस तरह से हमने प्लॉट कर दिया, इसका लाइन बना दिया. क्लियर ये चीज? अब उसकी इनइक्वालिटी लेंगे. उसकी इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. क्लियर? अब फिर से हम एक पॉइंट लेंगे इस लाइन के नीचे या ऊपर, दोनों में से कहीं का भी. मान लो मैंने नीचे वाला पॉइंट लिया. नीचे वाला पॉइंट क्या है 0 0, कोई भी एक लिया. तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 4 है. तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्या ये ट्रू होता है? क्या 0 4 से बड़ा होता है? नहीं होता, मतलब ये फॉल्स है. तो हम नीचे वाले रीजन को शेड नहीं करेंगे. हम कौन से रीजन को शेड करेंगे, ऊपर वाले रीजन को. समझ में आया ये चीज? क्लियर? हाँ, या तो नीचे वाला आएगा या ऊपर वाला आएगा. If a statement is true, so we will take like the downward side, we will be shading it. And if it is No, false, we will be taking the just upper let side. me correct you. If the statement is true, then we will shade the that region which contains this point. For example, here, the region
So Uh, we'll go towards 0, comma 0. Like we'll go correct, towards the origin. correct, correct, correct. And if it is Use false, so we will go outside the origin. go Correct, outside. correct. Yeah. Further, for combined solution, we will shade the common regions. So this will be the graphical solution of the system inequality. Clear? मतलब क्या? देखो क्या करते हैं, पहले लाइन हमने ड्रॉ कर ली, अब हम क्या करते हैं, लाइन के नीचे या ऊपर में से कोई भी एक पॉइंट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट है 100,100. ठीक है, और ये येलो वाली इनइक्वालिटी ले रहा हूँ, मतलब फर्स्ट वाली. अगर मैंने ये इनइक्वालिटी में x के और y के जगह पे 100 डाला, तो 100 प्लस 100 क्या होगा? 200. 200 लेस देन 6, क्या ये ट्रू है? फॉल्स है. तो हम इस साइड को शेड नहीं करेंगे. तो किस साइड को शेड करेंगे? उसका अपोजिट, मतलब नीचे वाले साइड को शेड करेंगे. ठीक है. दूसरा, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो. जैसे अगर मैंने 0 0 चूज किया, 0 0 चूज किया, तो 0 0 पुट करूंगा तो 0 लेस देन 6, ऐसा ही आया. तो ये ट्रू हुआ. ट्रू हुआ तो हम उस साइड को शेड कर देंगे जिसके लिए वो ट्रू हो रहा है. Sir, so what exactly we have concluded from this question? We have concluded that all the points which lie in this region satisfies these two inequalities, or they are the solution of these inequalities. Okay, because So like these are two parallel lines, no? So they can go till infinity. yeah, so we will get infinite number of solution. Look, if for example I have x plus y is equals to 5, and if I say find the solution of this equation, so what will be the solution of this equation? We will have infinite solution. If we put x is equal to 0, we will get y is equal to 5. That will be one solution. If we will put x is equals to 5, we will get y is equal to 0, another solution. So we will get infinite number of solution here also. Okay. So in case And of so a, what- yes, Yes, sir. in case of equation, all the point in the line is called solution of that equation. In case of inequalities, all the region, either on upside or downside, all the region is called solution of that inequality. Correct? Yes, sir. And so that 100, comma 101. We can take any point. This point is not the solution of this inequality because it does not satisfy the inequality. Okay. Yes, sir. Okay. Now solve the next question. Second one. And this will be the last question and must required question. Or not the second, solve the third one. I think that one will be the best. Solve the third question. This will be the last question. Third. नैना समझ में आया क्या? हाँ. हाँ, कुछ अलग नहीं है. इनइक्वालिटी ज्यादा है. कितनी इनइक्वालिटी? फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी क्या है? x plus 2y लेस देन 8. सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है? 2x plus y लेस देन और इक्वल्स टू 8. ऐसे ही है. थर्ड इनइक्वालिटी क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. फोर्थ इनइक्वालिटी क्या है? y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. क्लियर? तुम लोग लेट कर रहे हो, मैं और रुकवा दूंगा. बताओ, सुनो इधर, ध्यान दो जल्दी से. सीरियस बिल्कुल नहीं हो, लग ही नहीं रहा क्लास 12 के बच्चे हो. ऐसा लग रहा है 9 के बच्चे ऐसी बदमाशी करते रहते हैं. इधर ध्यान देना. इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है. ध्यान दो इधर. सबसे पहले आपने क्या किया? पहले तो देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको भी थोड़ा स्टार्टिंग का हिंट सुन लो, फिर आगे का सॉल्व करना. ठीक है, स्टार्टिंग का हिंट सुनो. मैंने ना फर्स्ट दो पॉइंट्स, ये वाले दो इनइक्वालिटी चेक किए. ये वाली इनइक्वालिटी क्या बोलती है? एक्स ग्रेटर देन 0. ये वाली इनइक्वालिटी क्या बोलती है? वाई ग्रेटर देन 0. एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े, मतलब दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव. तो ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, इसमें कैसा रूल होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स और वाई. तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली आपका जो ग्राफ होगा वो कौन से रीजन में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. तो इसलिए मैंने बाकी क्वाड्रेंट्स ड्रॉ ही नहीं किए. ज्यादातर क्वेश्चंस में रहेगा ऐसा. ठीक है, Shabi, is it clear? So that's why we are only considering the first quadrants, because x and y both are positive. Okay. Yes, sir. Okay. Further, we will solve for these two inequality. The first inequality is x plus 2y is not less than 8. Okay. We will convert this in equation. So x plus 2y is equals to 8. Now we have to draw the graph of this equation. For that, we will find the points
on the line. For that, we will draw this table. Now we will put the value of x. For example, x is equals to 0. We will get y4. And if we put y is equals to 0, we will get x8, correct? Now we will plot the point. The first point is 0, 4. This point will be here, 0, 4. The next point is 8, 0. This point will be here, 8, 0. Now we join the 2 points and draw the line. Okay, so the line will look like this. Okay, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद वाला काम आप बताओगे, इसके बाद वाला काम आप बताओगे। ये लाइन जो है उसका शेडेड रीजन डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 0, 0 मैंने पुट किया, 0, 0 मैंने पुट किया, सो कहां पर पुट करेंगे? वी विल पुट दीज वैल्यू इन दिस इनइक्वालिटी, करेक्ट? सो व्हेन वी पुट 0, 0, इट इज 0, 0 लेस देन 8, सो द इनइक्वालिटी इज ट्रू, करेक्ट? सो ये 0, 0 पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहां पर रखेंगे। 0 प्लस 0 इट इज 0, 0 8 से छोटा होता है, ट्रू है। ट्रू है मतलब इस लाइन के इस तरफ हम शेड कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम शेड करते समय दूसरे क्वाड्रेंट्स में नहीं जाएंगे। मतलब ये देखो, इसके नीचे नहीं और इसके इधर नहीं। क्लियर? अभी मैंने कर दिया, बाद में इरेज कर दूंगा, मेरे पास तो इरेजर है। एग्जैक्टली अभी इसमें एक चीज मैं गलत बता रहा हूं, लेकिन उसको बनाते चलो, बाद में करेक्ट करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट both are true. हाँ, Like both are true. no, both will not be true. Both are true means, okay, for this condition. Yes, Okay. sir. Okay, so for both the lines, the shaded region is downward. No problem with that. Yes, sir. So for the second line, again we will draw the graph x and y. We will find the points. So when x is equals to 0, we will get y is equals to 8. When y is equals to 0, we will get x is equals to 4. So this particular line will look like this. Okay, it will be 0, 8. This point will be 4, 0. Further, if we draw the line, it will look like this. Okay, now when we find the solution region, so its solution region will also be like this, correct? Okay, so ये कुछ ऐसा होगा। okay, यहां तक क्लियर सबको? सो हमने दोनों के रीजन को शेड किया। नाउ चेक फॉर द ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन मतलब दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है? तो दोनों का कॉमन रीजन जो है वो ये वाला है। ध्यान दो, देखो ये वाला रीजन है दोनों का कॉमन रीजन। सो दिस रीजन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट solution of this inequality. That's it. Clear हुआ ये step? So that means whatever points will lie in this region, they Is all will the solution satisfy of the this equation. inequality. Just एक second. It means all the point lying in this region is the solution of these inequalities combinedly. Correct? हाँ, क्या बोल रहे? सेकेंड वाले का शेडेड देखो, सेकेंड वाला ये था हमारा इक्वेशन इनइक्वालिटी। उसमें हमने क्या किया, एक्स और वाई की जगह पे 0 डाला, तो 0, 0, 0 लेस देन 8 ट्रू है। ट्रू है मतलब उस लाइन के नीचे के वाले को शेड कर दी। हाँ, तो इक्वल्स टू था ना, ठीक है ना? अच्छा, नहीं पॉइंट्स नहीं, बस ये हो गया, शेड किए, यही आंसर है। यू हैव टू शो ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड दिस इज व्हाट योर सॉल्यूशन। अब मैं जो बोल रहा था, मैं एक चीज गलत बता रहा हूं, वो क्या है, ध्यान से सुनना। शैवी, नैना, आप लोग भी ध्यान से सुनो। यहां पर बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है जो कि मैंने आपको नहीं बताई स्टार्टिंग में, वो ये है, ये इनइक्वालिटी का साइन जो है ना, इसको चेक करना है। जो ऊपर वाला इनइक्वालिटी ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, and this inequality is called slack inequality.
जिसमें इक्वल टू भी आता है। हाँ, तो जब ऐसा होता है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है ना, तब हमको ना ग्राफ बनाते समय लाइन का डॉटेड रखना पड़ता है। तो जो पहला वाला ग्राफ बनेगा ना, वो लाइन ऐसी पूरी नहीं बननी चाहिए, वो लाइन कैसी बननी चाहिए, डॉटेड बननी चाहिए। The line should be dotted. So the first line should be dotted and the second line should be as it is. Correct? तो ये समझ गए ना तुम लोग? बस ये चीज पे आपको फोकस करना है कि अगर इनइक्वालिटी इस तरह से तो डॉटेड, स्ट्रिक्ट है तो स्लैक है तो वो नॉर्मल लाइन बनेगी। ठीक है, बस यही बताया था, इसको मैंने डॉटेड नहीं बनाया था लाइन को। बस हो गया। ठीक है, अब जो कल की एलपीपी की क्लास है ना, वो उसमें हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं पूरे। 1.5-2 घंटे की टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा कितने बजे से मैं लूंगा।